Students, dear students, in previous class we learned about the geometrical solid that is cuboid. What is the formula to find the volume of the cuboid, that is length into breadth into height, the total surface area of the cuboid, that is 2 into bracket LB plus BH plus HL, where L, B and H are the lengths, breadth and height of the cuboid. Okay, so and the lateral surface area, that is chord surface area of the cuboid, that is 2 into bracket L plus B into H. Okay, now today we shall see some more examples in exercise 13.1. Okay, so see, the question number 4 in exercise 13.4 is the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी एक कंटेनर में इतना पेंट है रखा हुआ कि जिससे 9.375 मीटर स्क्वायर इतना एरिया पेंट हो सकता है। इतना पेंट आपके पास में कंटेनर में अवेलेबल है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 centimeter by 10 centimeter by 7.5 centimeter can be painted out of this container। तो उस पेंट का यूज करके आप कितने ब्रिक्स को कलरिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया कितना है वो निकालना पड़ेगा, है ना। फिर जो अवेलेबल आपके पास में एरिया है, एरिया मीन्स 9.375 मीटर स्क्वायर हम उस पेंट से कर सकते हैं टोटल। तो वो एरिया डिवाइडेड बाय, अगर आपने वो एक ब्रिक्स का एरिया किया तो आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलेगी, है ना। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालना है कि कितने ब्रिक्स आप कलर कर सकते हैं। तो किसी ना है टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेज इज 9.375 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हम उस पेड़ से कलर कर सकते हैं। Here length of the brick, अभी हम क्या करेंगे कि एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। Here the length of a brick is 22.5 centimeter. One thing you remember here, the area which is given, that is in meter square. Okay, total area which can be painted by using that color, that is available 9.375 meter square, whereas the dimensions of the brick are given in centimeter. Length of a brick is 22.5 centimeter. Breadth of a brick is 10 centimeter. Height of a brick is 7.5 centimeter. Since the brick is like a cuboid, brick जो होती है, ईट होती है ना, ईट, तो वो ईट एक क्यूबॉइड के जैसा होता है। Therefore, the total surface area of a brick, एक brick का total surface area लिखिए, वो जाएगा 2 into bracket LB plus BH plus HL, which we have already studied. So you put here L, B and H. Dimensions of the brick. So 2 into length is 22.5 into breadth is 10. This is actually 10 plus breadth 10 into height 7.5 plus 7.5 into 22.5 length. So that will be in centimeter square area. So it comes 2 into 2 to 5.5 into 10 means I think it is 2 to 5 plus 7.5 into 10 means 75 plus 7.5 into 2 to 5.5, it comes 168.75. So that is 2 into 468.75 centimeter square means 937.5 centimeter square. Now since the available area is 9.375 meter square, so you convert this area centimeter square into meter square. You know that actually 937.5 centimeter square means centimeter into centimeter. First you convert the first centimeter to meter, that will be 1 upon 100 into second centimeter, that is 1 upon 100. So it becomes 1 upon this 10,000. So in meter square, it will be 937.5 upon 10,000 meter square. Okay, this will be the okay. Now
लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स बी एन, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना कलर हो सकता है वो हमें पता नहीं है। तो वो सपोज टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो एन है, तो वो एन कितने हो जाएंगे देखिए। तो नंबर ऑफ एन ब्रिक्स का एरिया कितना होगा, एक ब्रिक का एरिया है 937.5 इंटू 10,000, एक ब्रिक का एरिया है। तो अगर हम एन ब्रिक्स मानते हैं तो टोटल जो एरिया होगा टोटल एन ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया एन इंटू इतना होगा, एन इंटू 937.5 अपॉन 10,000, ये सारे एन ब्रिक्स का एरिया होगा। लेकिन ये जो एरिया है वो इक्वल टू दिया हुआ एरिया के बराबर में होना चाहिए। सो एन इंटू 937.5 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, here see here, the total area available was 937.5, that was in, actually it is meter centimeter, एक मीटर, see this is meter square, 9.375 meter square, okay, so this will be 937.5 था ना, तो उसको मीटर स्क्वायर में ये पॉइंट इधर लेके जाते, देखिए यहाँ पे क्या है, जस्ट मिनट, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 9.375 इक्वल्स मीटर स्क्वायर है ना। सो ये जो पॉइंट अगर मैं इधर लाता हूँ पॉइंट, सो इस पॉइंट को इधर लाता हूँ, मुझे 10,000 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 9375 कंप्लीट नंबर लिया इंटीजर, सो अपॉन 10,000 किया यहाँ पर 10,000, तभी 9 पॉइंट, ये पॉइंट इधर मूव हो गया। ओके, तो ये जो n नंबर ऑफ ब्रिक्स का एरिया था वो गिवन एरिया के बराबर में इक्वल करो, क्योंकि हमारे पास में अवेलेबल एरिया इतना है। नाउ यू कैलकुलेट दिस, so this n is equal to this 9375 multiplied by this 10,000 upon this 937.5 into this 1,000, ये वाला हो जाएगा। So it comes n is equal to 100. Therefore total number of bricks that can be painted with the help of available color are 100. तो 100 ब्रिक्स आपके कलर कर सकते हैं आप, उस अवेलेबल आपके पास में जो पेंट अवेलेबल है उससे आप 100 ब्रिक्स कलर कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। द क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज, अभी क्यूबिकल बॉक्स है आपके पास में, उसका हर एक एज जो है, क्यूब है तो सारे एज तो उसको एक समान रहेंगे, क्यूब है, so 10 centimeter, and another cuboidal box is 12.5 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter high। ये क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिया है और क्यूब अलग से दिया है जिसका एज 10 सेंटीमीटर होगा। तो क्यूब के तो सारे एज एक जैसे होते हैं, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम जो है वो a क्यूब होता है इफ a is an एज। Here, which box has the greater lateral surface area and by how much? तो क्यूब का lateral surface एरिया ज्यादा होगा या क्यूबॉइड का होगा, ये आपको निकालना है, और कितने से होगा। Secondly, he asked us to find which box has the smaller total surface area and by how much. पहले lateral surface area, बाद में smaller total surface area। total surface area जो है किसका कम होगा बोलते हैं, क्यूब का होगा या क्यूबॉइड का होगा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग से दोनों का निकाल लेते हैं। देखो, फॉर द क्यूबिकल बॉक्स जो जिसका एज 10 सेंटीमीटर है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया 4 फेस कर्व वाले 4a स्क्वायर होगा, क्योंकि एक स्क्वायर का a स्क्वायर होता है, इसको 4 फेसेस ले लो साइड के लेटरल सरफेस एरिया, तो 4 इंटू स्क्वायर में 4 इंटू 10 स्क्वायर, दैट विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एज इज इन सेंटीमीटर, so 400 centimeter square. Now the total surface area जो होता है क्यूब का 6a square होता है, there are total 6 same or equal square surfaces to the cube, so 6 into a square, that is 6 into 10 square, so it comes 600 centimeter square। तो दोनों का कर्व surface area as well as total surface area of the cube we have find out here। Now secondly, for the cuboidal box with the dimensions, cuboid जो है उसका dimensions है
12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये उसके डायमेंशन है। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, यहाँ पे उसकी वैल्यूज रखो, 2 इंटू ब्रैकेट 12.5 एल प्लस बी इज 10 इंटू एच इज 8, सो इट विल बी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का है वो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना। अभी टोटल सरफेस एरिया निकलते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड का 2 इंटू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। So 2 into L is 12.5 into 10 is breadth plus breadth 10 into height 8 plus height 8 into length 12.5. So 2 into 12.5 into 10 means 125 plus 10 into 8 means 80 plus 12.5 into 8 means 100. So it comes 2 into 305 that is 610 centimeter square. तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का 610 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया पता हो गया, लेटरल सरफेस एरिया भी पता हो गया। ये लेटरल सरफेस एरिया है आपका क्यूबॉइड का 360 और टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्यूबिकल बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। क्यूबिकल बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो देखो, इसका 360 आ गया क्यूबॉइड का, है ना, और उसका कितना आया था देखिए 400 आया था। 10 था ना उसका, क्यूब का साइड जो 10 था तो 4a², तो 4 इंटू 100, सो दैट इज 400, उसका 400 था, इसका 360 आ गया। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूबिकल बॉक्स का एरिया ज्यादा है। अभी टोटल सरफेस एरिया आपके क्यूबिकल बॉक्स, देखिए क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया 610 आ गया, 610, और क्यूब का कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 स्क्वायर, तो 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का ज्यादा है। देखो क्यूबिकल बॉक्स जो है क्यूबॉइड का, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, जबकि यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबॉइड नहीं सॉरी क्यूबिकल बॉक्स, क्यूब का ही है, क्यूब का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से the total surface area of a cubical box is smaller than cuboidal box. टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कम आता है, कितने से 10 से कम आ रहा है। ओके, एंड द क्यूबिकल बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया लेकिन क्यूबिकल बॉक्स का ज्यादा आ रहा है, दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो ये आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, कांच से बनाया उन्होंने, is made entirely of glass pans held together with tape. टेप जो ज्वाइंट जो होते हैं उस ग्लास को चिपकाने का, दो ग्लास कंबाइन अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसको टेप यूज किया उन्होंने। इस तरह से एक क्यूबॉइड के जैसा एक ग्लास का उसने ग्रीन हाउस बना दिया, इंडोर ग्रीन हाउस। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है, देखिए ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, नंबर 1 व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, वो जो क्यूबॉइडल बॉक्स है आपका उसका एरिया कितना होगा। हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, पूरे 12 जो एजेस होते हैं, एक जो क्यूबॉइड होते हैं आप देखिए उसके हर एक एज आप काउंट कीजिए, तो टोटल उसको 12 एजेस होते हैं। तो उस 12 एजेस को कितना लंबा टेप लगेगा उसको दोनों को ज्वाइन करने के लिए। ओके, नाउ देखिए द हर्बेरियम, हर्बेरियम में जो ग्रीन हाउस वाला जो था इंडोर ग्रीन हाउस, उसी को उसने हर्बेरियम कहा है। द हर्बेरियम इज लाइक ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के जैसा है। लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ इसकी 25 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है 25 सेंटीमीटर है। ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ द हर्बेरियम ग्लास, सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहाँ आप वैल्यू रख दिए, 2 इंटू एल मीन्स 30, बी मीन्स 25 प्लस बी मीन्स 25, एच मीन्स 25 प्लस एच मीन्स 25 इंटू एल मीन्स 30,
So it comes to into 750 plus 625 plus 750. So 2 into 2125 में 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट ग्रीन हाउस जो होगा वो ग्लास का बनाया हुआ, उसका एरिया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अभी टेप निकालते हैं। टोटल लेंथ 12 है जैसे, है ना, तो 12 उसको 4 लेंथ होती है। आप देखिए टोटल जो होती है क्यूबॉइड को 4 लेंथ होती है, 4 कॉर्नर वाले जो होते हैं, कॉर्नर के वाले जैसे रूम होती है तो उसके एजेस पकड़ लो, 4 ब्रेड्थ होते हैं, 4 हाइट्स होती है ना, 4 साइड, 4 कॉर्नर में 4 हाइट्स होते हैं उसकी। तो उसको टेपिंग करना है हर जगह पे। तो टेप कितना लगेगा आपको, देखो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, 4 को बाहर ले लीजिए तो 4 इंटू लेंथ है उसके 30, ब्रेड थे 25 और हाइट है 25। सो ये 4 इंटू ये 30 प्लस 25 और 25 50, 50 और 30 80, 4 इंटू 83 20 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर का उसको टोटल टेप लगेगा उस ग्रीन हाउस के कॉर्नर्स को टेपिंग करने के। ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉरी, Shanti, next question. Shanti's sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. शांति जो स्वीट मार्ट है उन्होंने क्या किया कि जो स्वीट्स पैक करने के लिए बॉक्सेस लगते हैं उसका ऑर्डर प्लेस किया। उसको 2 तरह के बॉक्सेस चाहिए। देखो, देयर स्वीट 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 टाइप्स के उसके बॉक्सेस चाहिए पैकिंग के लिए। द बिगर ऑफ डायमेंशंस, सबसे बड़ा जो बॉक्स है उसका लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेड 20 सेंटीमीटर और उसका हाइट 5 सेंटीमीटर चाहिए। एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन, छोटा वाला जो बॉक्स है उसका यानी क्यूबॉइडल है वो 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इस तरह से। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। और उसको टोटल सरफेस एरिया जो सारे बॉक्स का होगा तो उसमें 5% एरिया ज्यादा का चाहिए कार्डबोर्ड का, जो बोर्ड से बनाएंगे, क्योंकि कुछ वेस्टिंग के लिए। तो अब ये सारे बॉक्सेस बनाने के लिए उनको एक शीट लेना पड़ेगा। तो इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड की शीट लेना है टोटल सारे बॉक्स बनाने के लिए, तो अगर कॉस्ट कार्डबोर्ड की जो है 4 रुपए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए उसका रेट है। अगर इस तरह से रेट है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। 2 टाइप के जो बॉक्स है, हर एक बॉक्स आपको 250 बॉक्स चाहिए उसको। 250 बॉक्स, 250 बॉक्सेस पहले टाइप के जिसके डायमेंशन आपको दिए हैं, और 250 बॉक्सेस ऑफ अनदर टाइप के जिसका डायमेंशंस भी दिया है, और उसमें फिर 5% एरिया एक्स्ट्रा चाहिए। ऐसा मिला कि टोटल जो एरिया बनेगा वो कितने रुपए का होगा बोलते, जबकि रेट दिया उसने 4 रुपए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए। तो हम क्या करेंगे, पहले 250 पहले टाइप के जो 250 बॉक्सेस है उनका एरिया निकालते हैं कितना शीट लगेगा। तो लेंथ पहले बॉक्स की जो है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट बॉक्स 2 into bracket LB plus BH plus HL, 2 into 25 into 20 plus 20 into 5 plus height 5 into length 125, कितना, it is 25, okay, so centimeter square। 2 into 25 into 20 500, 20 into 500 plus 5 into 125, that is 5 into 25 simply, this is correct, 5 into 25 means 125 centimeter square. So it comes to into 7 to 5 means 1450 centimeter square. This is the total surface area of the first kind of the box। पहले टाइप का जो बॉक्स है उसका एक बॉक्स का एरिया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऐसे हमको चाहिए 250। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा, देखिए यहाँ पर कितना था, 250, 250 इंटू ये मल्टीप्लाई 1450, 1450 एक का है, तो 250 इंटू 1450 ये एक टाइप का होगा आपका। अभी दूसरा निकालिए, टोटल सरफेस 1450 आएगा टोटल सरफेस एरिया। फिर से किया मैंने, टोटल सरफेस एरिया
200 250 से मल्टीप्लाई कीजिए इसे, 250 से मल्टीप्लाई किए 250 इंटू दिस 1450, सो इट कम्स इतना आ जाएगा आपका 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हो जाएगा एक पहले टाइप के बॉक्स का। अभी दूसरे टाइप का बॉक्स लीजिए। दूसरे टाइप का बॉक्स में L 15 है, ब्रेड 12 एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स, 2 into bracket LB plus BH plus HL, 2 into 15 into 12 plus 12 into 5 plus 5 into 15 centimeter square. So 2 into 15 into 12 180 plus 12 into 5 60 plus 5 into 15 that is 75. So 2 into 315, so it comes 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया होगा स्मॉल बॉक्स का होगा। तो ये भी हमको 250 चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, 250 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको 630 को, तो ये हो जाएगा आपका 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे टाइप के जो बॉक्सेस है स्मॉल साइज के 250 बॉक्सेस, उसका एरिया इतना है ना। और पहले जो बड़े टाइप के है उसका एरिया इतना है। अभी टोटल इसकी ऐड करते हैं हम। टोटल सरफेस एरिया 500 बॉक्स, पहले 250 और दूसरे 250, तो ये आते हैं देखो 3,62,500 प्लस 1,57,500, तो ये इतना आ जाए 5,20,000, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 500 बॉक्स का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसमें आपको ओवरलैप्स के लिए कहीं भी ओवरलैप होते हैं, है ना, जो बॉर्डर्स होते हैं, इसको पैकिंग करना है, बॉक्स को फोल्डिंग करना है ना, फ्लैपिंग करना है, तो उस समय उसको 5% एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा उसका 5% निकालो। 5% किसका? टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का 5%, सरफेस टोटल सरफेस एरिया का 1% क्या होगा? उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 100 यहाँ पे लिया, 5%, 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5% हो गया। अभी हमको टोटल कार्डबोर्ड कितना लेना पड़ेगा? तो ये 5% प्लस ये 5,20,000, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? यानी 250 बॉक्स ईच टाइप की, स्मॉल और बड़े वाले, प्लस ये आपका 5% ओवरलैपिंग का, तो 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इतना। अभी देखिए 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए रेट है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपए का हो जाएगा, है ना? 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए, है ना। तो इसलिए कितना हो जाएगा देखिए, तो कॉस्ट ऑफ 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड ₹4, कॉस्ट ऑफ 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपया हो जाएगा 5,46,000। इसको 1,000 से डिवाइड कीजिए पहले, फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको डिवाइड कीजिए, क्योंकि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए है, तो 1,000 से डिवाइड करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो 2,184 रुपए आएंगे। तो टोटल जो आपको कार्डबोर्ड होगा वो 2,184 रुपए का होगा। ओके, देन नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। परवीन जो है उसने क्या किया, अपनी कार रखने के लिए एक शेल्टर बनाना है। उस शेल्टर वो भी क्यूबॉइड के जैसे ही है। by making a box like structure with tarpaulin that covers all the 4 side, tarpaulin से बनाने का है, at the top of the car, ऊपर से भी होना, with the front face as a flap, सामने से भी होना, ऊपर और एक क्यूबॉइड के जैसा है, उसको टारपेलिन से एक छोटा सा एक क्या शेल्टर बनाना है उसको। तो ओके, assuming that the stitching margins are very small, उसका जो स्टिचिंग है उसको निग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल है, देयरफॉर निग्लिजिबल, उसको छोड़ दो। हाउ मच टारपेलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट, शेल्टर की हाइट है 2.5 मीटर, डायमेंशन बेस डायमेंशन जो है 4 मीटर बाय 3 मीटर, जो उस रूम का नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है 4 मीटर बाय 3 मीटर है, लेंथ 4 मानते हैं तो ब्रेड 3 हो जाएगी, और हाइट दी है 2.5 मीटर। तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते समय हमको क्या करना पड़ा, लैटरल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा साइड का, और ऊपर का सीलिंग का, नीचे तो ग्राउंड होता है, नीचे तो टारपेलिन लगना नहीं है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया कितना टारपेलिन लगेगा, लैटरल सरफेस एरिया चारों साइड का, और ऊपर का सीलिंग जैसा होता ना ऊपर का एरिया, नीचे तो जरूरत नहीं है।
इसलिए लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 × L+B × H, प्लस ऊपर का जो होगा जितना ग्राउंड का होता है उतना ही सीलिंग का ऊपर का होगा L × B। बस यहाँ पर वैल्यू रखिए, 2 × L मीन्स 4 है, ब्रेड 3 है, इंटू H 2.5 मीटर, ओके, प्लस LB 4 × 3, so 35 plus 12 47 meter square. So tarpaulin therefore Parveen will require to purchase 47 meter square tarpaulin to prepare this shelter room. The shelter room, to construct this shelter room, Parveen has to purchase 47 meter square tarpaulin. इतना उसको tarpaulin purchase करना पड़ेगा. Okay, so just stop here. Thank you.